So one thing, there may be the deadlock. It may lead to the deadlock. Two-phase locking may lead to the deadlock. Second thing, if there is a deadlock, it may lead to the starvation also. It may lead to starvation also. Another thing, third thing, it may leads to the irrecoverability. Yeah, there may be the irrecoverability. Yes, there may be irrecoverability. Also, there may be the cascading rollback. There may be the cascading rollback, and there may be the lost update problem, right? So मेजर यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार that in two phase locking there will be deadlock or not, and what about the starvation? Yes, there may be starvation, there may be deadlock also. Okay, so मेजर ये रहेगा और कुछ पॉइंट्स ये भी हो सकते हैं, right? So this is what disadvantage of two phase locking. So what we'll do, we'll go for the strict recoverability in two phase locking, right? So in two phase locking we'll move to the strict recoverability. We'll move to the strict recoverability. Yeah, we'll move to the strict recoverability. Let's see what is the strict recoverability. So we can think like a, this is what a schedule given. Here it is T1, here it is T2, and in T1 it is right of A, and T2 here it is read of A, or we can say if it is a right of A. We are discussing about the strict recoverability. तो ये शेड्यूल कब स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होगा? अगर ये सिचुएशन अगर आ रखी है, पहले कोई अपडेट कर रहा है और उसके बाद रीड या राइट हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा इस केस में? इस केस में ये करना पड़ेगा कि जब तक ये कमिट या रोल बैक नहीं हो जाता है तब तक क्या करना पड़ेगा? इस रीड या फिर राइट को क्या करना पड़ेगा? डिले करना पड़ेगा, राइट? सो विल डिले द read of A or write of A in transaction T2 until the commit or rollback of this transaction T1, right? So अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? That schedule will be strict recoverable. ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या कहेंगे? That schedule will be the strict recoverable. ओके, तो टू फेज लॉकिंग में क्या कर दिया है? स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी को भी ऐड कर दिया गया है यहाँ पे. ओके, सो वी कैन से इट इज ए स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी विद टू फेज लॉकिंग. ठीक है, स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी विद टू फेज लॉकिंग. क्या होगा स्ट्रिक्ट रिकवरेबल टू फेज लॉकिंग अगर होगी तो? इफ इट इज ए strict 2PL, if it is strict two phase locking, then what are the advantages? It will ensure serializability. So it will ensure serializability, right? It will ensure serializability. Another thing, it will ensure the strict recoverability. Ensure strict recoverability. It will ensure the strict recoverability. If there is a strict recoverability, if there is a strict recoverability, it means there is a no problem of irrecoverability, right? So there is no problem of irrecoverability. Another thing, there is no cascading rollback.
no cascading rollback, right? No cascading rollback. And another thing we can say, no lost update problem, no lost update problem, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाले इश्यूज आ रहे थे ना फर्दर, नो ई रिकवरेबिलिटी, केस्केडिंग रोलबैक और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो ये वाली प्रॉब्लम्स क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी ऑफ टू फेज लॉकिंग, ठीक है? अब टू फेज लॉकिंग में अगर स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी कर दिया गया है तो क्या होगा, ई रिकवरेबिलिटी की प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया है, और उसके बाद केस्केडिंग रोलबैक भी नहीं होगा, और वहां पे लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट 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 2PL, this strict 2PL may not free from, may not may not free from, it is not, it may not free from one thing, deadlock. Second thing, it is starvation, right? Second thing is starvation. So still deadlock and starvation might exist even still, even schedule is strict two phase locking, ठीक है? स्टिक्ट टू फेस लॉकिंग भी अप्लाई की है, फिर भी क्या हो सकता है, वहां पे डेडलॉक या स्टारवेशन आ सकता है, राइट? सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है? और ये वाला भी ध्यान रख लेना कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल अगर होगा तो क्या नहीं होगा, वहां पे ई रिकवरेबिलिटी, रोलबैक वाली प्रॉब्लम और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, सो इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, फाइन। Okay, finally we can represent the schedules like so here it is. This one is serial schedule. Here it is serial schedule. After that it is strict 2PL. After that it is basic 2PL. Basic 2PL. After that we can say conflict serializable schedule, and after that we can say view serializable schedule, right? So diagrammatically we can understand this one, that firstly these are the serial schedule, then it will be strict two phase locking, basic two phase locking, conflict serializable schedule, and view serializable schedule. So you can think like, if it is a serial schedule, definitely it is strict two phase 2PL also,
but if it is 2pl it need not be serial. Okay, if it is a 2pl it is a basic 2pl also, but if it is a basic 2pl it need not be strict 2pl. ठीक है, तो इस डायग्राम को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ऑलरेडी काफी डायग्राम्स ऐसे कर चुके हैं, सेम मेथड है. So this diagram is clear to all. Okay, okay, fine. So till this part two phase locking is over, right? So two phase locking is over. Now next concept we will see the timestamp ordering protocol. ठीक है, तो 2pl ओवर हो चुका है. नाउ विल डिस्कस अबाउट टाइम स्टैम्प ordering protocol. Because we know that two phase locking is suffering from deadlock, also it may suffer from starvation, so we are moving to the timestamp ordering protocol. ठीक है, तो हम मूव करेंगे timestamp ordering protocols की तरफ. So first term is what is a timestamp? What is a timestamp? Timestamp क्या होगा? So timestamp we can say it is a unique value. It is a unique value assigned by DBMS in advance to every transaction in sequential order. ठीक है, तो ये क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है और DBMS क्या करेगा, DBMS उसको यूनिक वैल्यू असाइन करेगा. कब असाइन करेगा, एडवांस में ही असाइन कर देगा हर एक ट्रांजेक्शन को किसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में, राइट. So timestamp is what? It is a unique value. It is a unique value assigned to the transaction in sequential order. ठीक है, ट्रांजेक्शन को असाइन कर दी जाएगी ये वाली वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल you can say this is what a transaction T1, T2, T3 and T4. These are the transactions in this schedule we can say. And here some unique values are assigned like it is a 10, 20, 30, 40 in sequential order we can say, right. So ये जो स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे थी जो सबसे पहले असाइन की गई थी, इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज द ऑर्डर ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ऑर्डर वन. और जो अभी अभी करंटली फिनिश किया गया है, ओके, इज इट विजिबल टू अदर कैंडिडेट्स? Yes, is it visible? Kamal, I think it is problem from your end. You try to reconnect. Okay. So here ये क्या है, 40 मैंने कब असाइन किया है इसको, अभी जस्ट अभी असाइन किया था ना लास्ट में, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, दिस इज द यंगर ट्रांजेक्शन. दिस इज व्हाट, यंगर ट्रांजेक्शन. तो ये क्या रहेगा, यंगर ट्रांजेक्शन रहेगा. दिस ट्रांजेक्शन इज द older transaction. This transaction is older transaction. Got it? Okay. So for oldest transaction T, let me say oldest transaction T. Oldest transaction T, इसका मतलब क्या होगा, a transaction with a minimum timestamp value, right. A transaction T with a minimum timestamp value.
right? A transaction T with a minimum timestamp value is known as oldest transaction, or older we can say, right? And another one is youngest transaction or younger transaction, you can say. Let me say youngest transaction T. So what is the youngest transaction T? We can say that a transaction T with the maximum timestamp value. So a transaction T with a maximum timestamp value. So a transaction T with maximum timestamp value is known as youngest transaction, right? Okay. उसके बाद क्या होगा? There will be the concept of data items. Data items, right? So data items में क्या होगा? उसके corresponding timestamp होगा. There will be the read timestamp for data item. Let me say data item is A, and there will be the write timestamp. There will be the write timestamp for a data item. Let me say B or A, कोई भी हो सकता है. Let me say A or B. ठीक है? That's depend on data item on the transaction, over the transaction. So transaction में जो भी data items होंगे. So let's see some of examples. Okay. So one transaction is given as it is T1 then T2. After that it is a read of A, and here it is write of A. Okay, this is what the first transaction. Let me say second transaction. Second transaction is given as this is T1 T2, and here it is write of A, and after that here it is write of A. And third transaction is also given, sorry, third schedule also given. Here it is T1 T2, T1 T2, and here it is write of A, then it is read of A, this one. Okay, so what will happen here? So for one thing, DBMS क्या करेगा? इसको वैल्यू असाइन करेगा. ठीक है? तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग वैल्यूज असाइन करेगा. लेट मी से दिस इज कंटेनिंग वैल्यू एज 10 एंड दिस वन हैविंग वैल्यू 20. हियर ऑल्सो इट इज 10 एंड 20. हियर ऑल्सो इट इज 10 एंड 20. ठीक है? इस ऑर्डर में क्या कर रखी है? इसको असाइन कर रखी है वैल्यूज. ओके, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? ये क्या कर रहा है? रीड कर रहा है. सो डेटा आइटम रीड के कॉरस्पॉन्डिंग, रीड ऑफ ए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? इसकी इनिशियल वैल्यू 0 अज्यूम. ओके, अब क्या कर, अब रीड करेगा, रीड करेगा और रीड करेगा तो क्या चेक करेगा? सॉरी, लेट मी राइट डाउन राइट और ऑल्सो. ये राइट टाइम हो गया इसका, सॉरी क्या हो गया इसका? Write timestamp we can say. Yes, it is the write timestamp for data item A and it is the read timestamp for data item A. Initially 0 है जून. ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेगा? रीड करेगा. तो रीड करेगा ना, तो ये किसको चेक करेगा? ये राइट के टाइम स्टैम्प को चेक करेगा. ठीक है? रीड के टाइम पे किसको करेगा? राइट के टाइम स्टैम्प के साथ चेक करके देखेगा. अच्छा, अब ये वाला क्या है? राइट का टाइम स्टैम्प है, राइट टाइम स्टैम्प है ऑलरेडी, विच इज इक्वल टू 0. और ये किसके साथ कंपेयर करेगा? टाइम स्टैम्प. टाइम स्टैम्प का मतलब करंट टाइम स्टैम्प क्या है? करंट टाइम स्टैम्प क्या है इसका? ये नॉर्मली तो इसका राइट टाइम स्टैम्प क्या है? 0. और अभी क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? रीड को कर रहा है ना, और रीड को कर रहा है तो इसका टाइम स्टैम्प वैल्यू क्या है? 20. ठीक है? करंट इसका टाइम स्टैम्प 20 है. अब क्या है? ये वाला ग्रेटर है ना 20, है ना? राइट टाइम स्टैम्प से क्या आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है. अगर ग्रेटर आ रहा है तो क्या करेगा? इसको एग्जीक्यूट कराएगा रीड को और अपडेट कर देगा रीड की वैल्यू क्या? 20. क्लियर?
कहाँ से कंप्लीटली, या फिर ये जो पॉइंट बताया मैंने? रीड टाइम स्टैम्प पे इनिशियली जीरो, और म्यूट कर लो आप, यस, देन राइट टाइम स्टैम्प जीरो, ठीक है। तो राइट टाइम स्टैम्प भी जीरो ले रखा है, और करंटली क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है ना, और रीड के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम स्टैम्प वैल्यू क्या है करंट, इट इज 20। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प क्या है, करंट टाइम स्टैम्प 20। और राइट टाइम और रीड रीड जब करेगा ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैच करेगा राइट के साथ, रीड करते टाइम ये राइट के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो राइट वाले से ग्रेटर टाइम स्टैम्प है ना, जो यंगेस्ट ट्रांजेक्शन है मेरा, यंगेस्ट तो यही हुआ, तो ये क्या है, ग्रेटर है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है तो क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा रीड का ऑपरेशन, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या कर देगा, 20 बना देगा, ठीक है, रीड को अपडेट कर देगा। इतनी स्टोरी देखी है हमने। उसके बाद क्या कर रहा है, राइट ऑफ ए, राइट करेगा। जब ये राइट करेगा ना, तो राइट करते टाइम क्या करेगा, ये रीड की वैल्यू को भी चेक करेगा और राइट की वैल्यू को भी चेक करेगा। अगर इन दोनों की वैल्यू से इसकी जो करंट वाली वैल्यू अगर ग्रेटर तो होगी, फिर तो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज रोल बैक करेगा। तो यहां पे क्या होगा, राइट रीड टाइम स्टैम्प की करंट वैल्यू कितनी है, जीरो है, ठीक है। और राइट टाइम रीड टाइम स्टैम्प की करंट वैल्यू 20 है भाई, जीरो नहीं है, इट इज 20। और राइट टाइम स्टैम्प की कितनी है, जीरो है। इन दोनों से कंपेयर करेगा, राइट, किसको, करंट टाइम स्टैम्प को। ये टाइम स्टैम्प बोल दिया मैंने करंट वाला, लेट मी से करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये करंट टाइम स्टैम्प बोल देते हैं इसको, ठीक है। करंट टाइम स्टैम्प कितना है अभी, 10। राइट करते टाइम क्या है इसका, 10 है ना। अब ये 10 के साथ कंपेयर करेगा, कौन ग्रेटर है, रीड वाला ग्रेटर आ रहा है ना। इसका मतलब ये वाला क्या है, स्मॉलर है। अगर करंट टाइम स्टैम्प आपका स्मॉलर होगा रीड या राइट से, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, रोल बैक। तो यहां पे करना पड़ेगा रोल बैक, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपर वैल्यू से डाउन वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, और अपर से डाउन की तरफ अगर आएंगे तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? Yes, is it clear to all? Okay, it is clear to Ekta. What about others? Okay, okay. So it is clear to all. Fine. Let's see the next example. 3 एग्जाम्पल करेंगे, उससे ये चीज सेट हो जाएगी कि कैसे चेक करते हैं इसको, है ना। Let's see the next example. Okay, let me rub this one. Yes. Now we'll check for second example. This one. So what is the read timestamp? Read timestamp currently 0. What is the write timestamp currently? Okay, it is for A. Read timestamp for A, write timestamp for A. Current value is 0 है जो दोनों की, है ना। ओके, अब क्या करेगा यहाँ पे, फर्स्टली ये राइट कर रहा है ना, राइट, ओके। तो राइट करेगा तो क्या क्या करेगा, ये दोनों की वैल्यूज को चेक करेगा, राइट। तो ये चेक करेगा किससे, रीड टाइम स्टैम्प से और राइट टाइम स्टैम्प दोनों से। कब, जब ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जब ये क्या करेगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो क्या करेगा, ये दोनों चेक करेगा, रीड टाइम स्टैम्प भी चेक करेगा, राइट टाइम स्टैम्प भी चेक करेगा। करंटली ए का रीड टाइम स्टैम्प कितना है, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए इज 0। राइट टाइम स्टैम्प कितना है ए का, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए इज इक्वल टू 0,
ठीक है, ये स्टोरी है ना। और करंट टाइम स्टैम्प क्या है? करंट टाइम स्टैम्प का मतलब यंगेस्ट ट्रांजैक्शन जिसको वो एग्जीक्यूट करने लग रहा है, इस वाले को, है ना। सो करंट टाइम स्टैम्प इसका क्या है? दैट इज 20। अब ये करंट टाइम स्टैम्प क्या है? ग्रेटर है ना इससे। अगर ग्रेटर है, इफ इट इज ग्रेटर, इफ इट इज ग्रेटर, ग्रेटर अगर होगा तो क्या करेगा ये? इट विल एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट करेगा स्मूथली। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे राइट को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद क्या करेगा? राइट की वैल्यू को भी अपडेट कर देगा। यहाँ पे राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। ठीक है, तो अभी करंट राइट की वैल्यू क्या होगी? 20। ओके, आफ्टर दैट ये किसको एग्जीक्यूट करेगा? राइट ऑफ ए को एग्जीक्यूट करेगा, है ना। अब राइट ऑफ ए को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे क्या स्टोरी होगी? लेट्स सी, जस्ट ए मिनट। हाँ, ओके, तो यहाँ पे रीड टाइम स्टैम्प कितना है? 0 है, और राइट टाइम स्टैम्प कितना है? 20 है। इसका मतलब ये अपडेट हो गए, 20 हो चुका है। हाँ, अब क्या करेगा? यहाँ पे राइट कर रहा है। जब राइट करता है तो क्या करेगा? दोनों को चेक करेगा ना, रीड टाइम स्टैम्प को भी चेक करेगा, राइट टाइम स्टैम्प को भी चेक करेगा, दोनों को चेक करेगा। ओके, और यहाँ पे किसके साथ चेक करेगा? करंट टाइम स्टैम्प के साथ। करंट टाइम स्टैम्प कितना है इसका? 10, राइट। तो करंट टाइम स्टैम्प ऑफ ए ये कितना हो जाएगा? 10। अगर ये 10 है तो क्या रिलेशनशिप है इसमें? ये ग्रेटर रहेगा ना, दिस इज व्हाट ग्रेटर, दिस पोर्शन इज ग्रेटर। राइट टाइम स्टैम्प क्या है? ग्रेटर है। अगर राइट टाइम स्टैम्प ग्रेटर है किससे? करंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट हमारा स्मॉलर हुआ। और करंट टाइम स्टैम्प अगर स्मॉलर है तो क्या करना पड़ेगा? रोल बैक। ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प क्या है? स्मॉलर है, तो क्या करना पड़ेगा? रोल बैक। तो यहां पे रोल बैक करना पड़ेगा किसको? इस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा। गॉट इट? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू 0 ही लेके चलनी पड़ेगी हमें। यस, yes, done. Okay, let's see the next. ये वाला चेक करते हैं अब। Okay, so now what we'll do, we'll check for this one. So initial read time stamp क्या होगा? That is equal to 0. Write time stamp क्या होगा? That is equal to 0. Okay, just a minute.